وہ شاہ بہی کی بات تو وہ کلام کرتی تھی چیزیں. حضرت گزر رہے تھے کو میرے ورگا نہ بہ کے تسبیح پہ پھیرے. جب حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی. اب تسبیح کیا کہتی ہے اور حضرت تسبیح کی بات کو لکھتے ہیں. فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے, اور تو کی منو پھیر گئے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات سب کو بتاؤں جا کے. پھر جو تسبیح بولی حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا. اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو من کا پھیر پہلے, پھر میں تجھے بتاتی ہوں مجھے میں طاقت کتنی ہے. پھر میں تجھے ذرا اپنا زور دکھاؤں کہ مجھے رب نے زور کتنا دیا ہے. لیکن تیری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ تو نے من کا نہیں پھیرا. ابھی کوئی بھی تیرا ارادہ ابھی بھی دھوکہ دینے کا ہے. تیرا پلان ابھی بھی پہلے من کا پھر دیکھ مجھ میں زور کتنا پتر. یہ تو پتر لے لی نا ہمارے ہاتھوں تسبیح اور ہمیں یہ پکڑا دیا اور یہ ذہن بنا دیا کہ تسبیحیں صرف مولویاں تے پیراں لئی ہیں. نہیں, تیرے لیے بھی ہے. کبھی اس کو اچھی نیت سے پھیر کے دیکھ. پھر ہوتا کیا ہے مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو کیونکہ من کا پھرا تھا اور پھر تسبیح بھی پھر رہی تھی. اور کیا جی والا ذکر اللہ اکبر, سب سے بڑا اللہ کا نام, سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے اور وہ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جی آگے بھی اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو میرا راستہ دکھائے. نظام ہے اللہ کا حضرت. جی اب ادھر بھی وہی نظام چلنا تھا, کوئی نہ کوئی بیچ میں بندہ آنا تھا جس نے راستہ دکھانا تھا. حضرت وہ لکھا ہے وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ مبارک تھا. اور حضرت جنید بغدادی کی عادت تھی کہ اب عصر کے بعد نا وہ سیر مبارک فرمایا کرتے تھے. حضرت جنید حسب معمول اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کے سیر کے لیے نکلے. اب آپ کا راستہ تھا دائیں جانب, آپ گھوڑی موڑیں دائیں طرف, گھوڑی جائے بائیں طرف, آپ ادھر لگام کھینچیں لیکن گھوڑی جائے. آپ نے بھی خیال فرمایا روز جانے والی ہے, آج اس کو کیا ہو گیا, بڑا سیانہ جانور ہے جی گھوڑا, راستہ اس کو تقریباً میں ادھر پھیرتا ہوں یہ ادھر پھیر. کیونکہ اللہ والے تھے سمجھ گئے ایک اور راز ہے. آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی ہیں. دیکھو کہاں جاتی ہے. وہ لکھا جی وہ گھوڑی وہاں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا اپنے اللہ کو پکار رہا تھا. آپ سمجھ گئے اس کا جذب مجھے کھینچ کے لایا. آپ نیچے اترے, اس کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, سلسلہ لیا قادریہ شریف اس کے سینے میں منتقل کیا. حضرت دل روشن ہو گیا, دل ذاکر ہو گیا, دل جاری ہو گیا, سینہ اللہ کے رسول کی محبت سے جناب معطر ہو گیا, اندر سینے میں جل اٹھے دیے اللہ کے رسول کی محبت. اب حضرت طریقت و تصوف میں ایک کیفیت ہے جس کے لیے بولا گیا قبض, کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ انوار و تجلیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, دیوا بجھ جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے بندے سے, تو پھر کیا ہے, پھر اپنے پیر و مرشد کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ پھر نظر کرم فرماتے ہیں تو وہ جو بجھا دیا ہے وہ پھر جل اٹھتا ہے. آپ نے اسے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت مجھے. آپ نے فرمایا میں جنید بغدادی ہوں. کہتا ہے یا اللہ تیرا نام کتنا پاک ہے, جب کوئی تیرے در پہ آ کے خالص ہو کہ تجھے پکارتا ہے تو تو جنید کو بھیج دیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی کبھی کوئی معاملہ ہو نا, کوئی بجھ جائے دیا یا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کرنا, بغداد شریف میری خانقاہ میں آنا, میں پھر سلسلہ ادھر سے جوڑ دوں گا. ہائے ہائے کاش اللہ ہمیں بھی اتنا پکا ایمان عطا کر دے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ تو بتائیں اب میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟
आपने फरमाया यार अब तो मैं ही आया हूँ। वो आगे सर्च करता है हजरत मैं उस पाक के दरवाजे पे आ बैठा हूँ, अगर जरूरत होगी तो फिर किसी की घोड़ी मोड़ देगा। इतना तकवा किथे हजरत, एडा पक्का किथों लब के ले आई हजरत, इतना तकवा किधर हजरत, क्या खबर मैं आया हूँ क्या आप आए? मैं ही आया हूँ, मेरी घोड़ी मोड़ी गई है तेरी तरफ। मैं तो पानी पिलाने निकला था, मैं तो सैर के लिए जा रहा था, मैं इसको दाएं खींचता था, ये बाएं को जोर लेती थी। मैं समझ गया कोई राज है, जब तेरे पास आया तो समझा, मैं समझ गया तेरे लिए भेजा गया। उसने कहा हजरत फिर मैं नहीं आना, मैं उन मालक दे बूहे बह गया, वहां लोड़ पेगी फिर किसी की घोड़ी मोड़ेगा हजरत। इतना ही पक्का होना चाहिए हजरत, इतना ही अपने अल्लाह पे यकीन कामिल होना चाहिए, बात फिर बनती है। इसलिए तो तस्बीह फिरी पर दिल न फिरे, कि लेना तस्बीह पढ़ के हुआ माला कहे काट की, अरे तू क्या फेरेगा मन का फेर दे महबूब मिला तू मन का तू खड़ा तो हो, तू बंदिया कभी पैर से भार ते पा, एक बारी साढ़े नहीं खलो ते जाए, एक बारी खलो बस, फिर देख हमें तुझे सुलेमान जब भी टेस्ट किया तू फेल, सुलेमान जब भी तेरा इम्तिहान लिया तू जीरो, कभी तो पैरों से पार पा, फिर देख हम तुझे अपने जलवे दिखाते हैं। ये स्पेशल नौजवानों के लिए। खैर अब तो हजरत जी हालात इस तरह के, नौजवान क्या और 40 वाले क्या और 45 वाले क्या और 50 वाले क्या, सब खतरे में है हजरत जी, जिसको अल्लाह बचा ले हजरत, इस तरह का दौर आया बाहर हजरत जी। हाँ जी, हर कोई खतरे में है हजरत, जिसको अल्लाह बचा ले, जिसकी अल्लाह हिफाजत करे हजरत। ये रोदुर रियाहीन इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने लिखी बड़ी खूबसूरत किताब है, सूफिया का तज़किरा है इसमें हजरत जी। उसमें हजरत ने लिखा है कि शहर बसरा में कोई बुजुर्ग थे, तो उनके जिस्म से ना कस्तूरी की, मिस्क की खुशबू आया करती थी हजरत जी। और लिखा है कि वो खुशबू इस कदर ज्यादा तेज थी कि हजरत जिस गली से भी गुजर जाते ना तो लोग भी कहा करते थे लगता है मिस्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह गुजर के गए हैं, क्योंकि जिस्म से खुशबू आती थी। इसलिए असल नाम लोगों को भूल गया, लोगों को याद रह गया मिस्की, लोग उनको मिस्की कहा करते थे, क्योंकि आपके जिस्म से मुश्क की, कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। देखा जब हजरत ने मस्जिद में दाखिल होते लोगों ने कहना मिस्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह आ गए। असल नाम लोगों को भूल गया, उनका नाम ही पड़ गया मिस्की, मुश्क बार, जिससे मुश्क की, कस्तूरी की खुशबू आई। वो लिखा कि एक दिन किसी ने बड़ा इसरार करके ना हजरत से पूछा, हजरत आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाता। तो हजरत जी जो आपके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आती है ये क्या है? आपने फरमाया मेरा वाकया बड़ा अजीब है। हजरत सुनाए हमें। फरमाया मैं जब जवान हुआ ना तो मैं सिर्फ जवान नहीं हुआ, अल्लाह ने शर्म व हया के जेवर से भी मुझे आरास्ता कर रखा था। अल्लाह ने शर्म व हया की दौलत मुझे वाफिर मिकदार में, आंखें नीची रखनी, ये शर्म व हया है ना, आंखें नीची रखनी, चलते हुए हजरत ऐसे ऐसे नहीं चलना, नहीं, निगाहें नीची रख के चलना, ये शर्म व हया की दौलत नहीं जी। तो अब तो दुख की बात है हजरत जी, कभी मर्दों में भी हुआ करती, तब तो औरतों में भी कोई नहीं रही है। अब तो वो भी इस तरह चलती हैं कि खुद अपना आप बचा के चलना पड़ता है। वैसे तो सफर पे रहती हैं, बड़ी कम नौबत आती है कि कभी किसी गली से गुजरना पड़े, अगर गुजरना पड़े तो भाई खौफ आता है, हो क्या गया। और कभी ये दौलत मर्दों के पास भी हुआ करती थी कि वो अपनी निगाहें नीची रख के चला करते थे। मिस्की रहमतुल्लाहि तआला कहते हैं वालिद साहब भी साले थे और उनका नेक होना मुझ पे भी असर अंदाज हुआ था। ज़ाहिर है जी बेनमाज का बच्चा बेनमाज ही होगा ना, ठीक है जी, अक्सर व पेशतर, और जो नमाजी है अक्सर व पेशतर उसका बच्चा भी नमाजी होगा, क्योंकि उसको फिक्र होगी कि भाई मैं अपने बच्चे को भी नमाज के लिए कहूं। जो खुद कुरान पाक की तिलावत करने वाला है उसके बच्चे भी करेंगे आगे से, जो खुद जिक्र अज़कार करने वाला है आगे उसके बच्चे भी करेंगे। उन्होंने कहा वालिद साहब साले थे, उन्होंने तरबियत की, उन्होंने जो है ना मेरी तालीम और तरबियत का बड़ा ख्याल रखा, और अल्लाह ने फिर मुझे शर्म व हया की दौलत से नवाज रखा था। हजरत मिस्की रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं मैं
दुकान पे ना, कपड़े की दुकान पे काम करता था। हस्बे मामूल मैं दुकान पे काम कर रहा था, एक बुढ़िया आई और उसने आके ना कुछ कपड़े पसंद किए और पसंद करके ना मेरी तरफ इशारा करके कहती है कि आप इस तरह करें कि इस नौजवान को मेरे साथ भेजें। मेरी मालिकन ने जो जो कपड़े इसमें से रखने होंगे ना वो रख लेगी और जो नहीं रखने होंगे वो वापस भेज देगी, और जो रखे होंगे साथ उनकी कीमत भी इस बच्चे के हाथ भेज देगी। हजरत मिस्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जी मैंने वो कपड़े उठाए, उस बुढ़िया के साथ चला गया, एक बड़े से घर में दाखिल हुआ, एक कमरे में मुझे बिठा दिया गया। एक औरत आई और उसने आके सबसे पहला काम ये किया कि मेरे कमरे को ना चिटखनी कुंडी लगाई। मैं घबरा गया, फिर वो मेरे पास आके बैठ गई। मैं उठ के उससे थोड़ा दूर जा बैठा, लेकिन उस वक्त उस पर शैतान और शहवत गालिब थी। उसने मेरे सामने अपने इरादा बद का इजहार किया और मुझे दावत ज़िना दी। मैंने उससे कहा कुछ खुदा का खौफ कहा, क्या तुझे इस बात से डर नहीं आ रहा कि अल्लाह पाक तुझे और मुझे देख रहे हैं? अल्लाह पाक तुझे और मुझे देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त उस पर शैतान सवार था, शहवत का गलबा था। न खुदा, न खुदा का रसूल, न कब्र, न हश्र, न सवाल, न जवाब, न रब के हुजूर पेश होना, उसे कुछ उस वक्त याद नहीं था। बस वो यही इरादा रखती थी कि मैं इससे अपनी नीयत बद, अपना इरादा बद पूरा कर लूं। मिस्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने अपने अल्लाह को पुकारा और उस वक्त मेरे दिल में एक बात डाली गई। मैंने उससे कहा चल अगर तू नहीं बाज आती तो मुझे पेशाब की हाजत है, मैं जरा बैतुल खला हो। उसने कहा, हजरत मिस्की फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल खला में गया ना तो वहां ज़ाहिर गंदगी इंसानी गलाजत पड़ी हुई थी। फरमाते मैंने बड़ा हौसला करके ना वो गलाजत उठाई और उसको अपने चेहरे और अपने जिस्म पे ना मल लिया। हाय हाय हाय, आज इतना बुरा हाल है हजरत, हम मौके ढूंढते फिरते हैं कि कोई गुनाह का मौका मिले। लेकिन कैसा सोना दौर था कि गुनाह से बचने के लिए उन्होंने अपने मुंह और सारे जिस्म पे इंसानी पखाना, इंसानी गलाजत मल ली। अब फरमाते जब मैं बाहर आया ना तो मुझे इस हाल में देख के पागल पागल का शोर मचा और वो कुंडी खोल के ना भाग गई। मैं भी बाहर निकला, एक बाग में पनाह ली, वहां मैंने अपना सारा कुछ जो है ना उसको धोया, अपने रब का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने बचा दिया। हजरत मिस्की फरमाते हैं जब मैं रात को सोया ना तो ख्वाब में क्या देखता हूं कि कोई मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पे अपना हाथ फेर रहा है। ख्वाब में मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पे अपना हाथ, और ख्वाब ही में मुझे पूछ रहा है क्या तू जानता है कि मैं कौन हूं? हजरत मिस्की फरमाते हैं कि वो ख्वाब ही में मुझे पूछ रहा है, साथ जो चेहरे और जिस्म पे हाथ फेर रहा है साथ पूछ भी रहा है क्या तू जानता है मैं कौन हूं? फरमाते मैंने तो सवाल का जवाब नहीं दिया, खुद सवाल करके खुद ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं मैं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अमीन हूं। पहले सवाल कर जानता है मैं कौन, और फिर खुद सवाल का जवाब देते हैं मैं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अमीन। अब फरमाते जब मैं सुबह उठा ना तो मेरे सारे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। अब फरमाते ये हजरत जिब्राइल अमीन के दस्ते मुबारक की बरकत है। हाँ सुलेमान, कभी तुम ही ओदे वास्ते छड़ गुनाह, फिर तेन भी जिब्राइल ख्वाब च मिलना आएंगे। लेकिन किसी को शौक इन जिब्राइल को मिलने का, सारे चिट्टे रंग ते मर गए हैं। किसी को शौक ही नहीं जिब्राइल को मिलने का है। मर गए अदर चिट्टा रंग वेख के, पागल हो गए, शदाई हो गए, पागल हो गए चिट्टा रंग वेख के। सी ना किसी है ही नहीं किसी जिब्राइल मिलन का शौक। आएंगे मिलने तुझसे तो कभी बच तो सही, कभी सिर्फ उसके लिए गुनाह तू कर सकता था लेकिन तू सिर्फ उसके लिए ना कर। आएंगे तुझे जिब्राइल ख्वाब में मिलने आएंगे तुझे, किसको मिले? इसलिए तो मियां मोहम्मद बख्श फिर रो के कहते हैं ना, कहते हैं की चिट्टे रंग पिछे रब ते रब दा रसूल छड्डन लगा, पौंडे नाल न्यू लगाना ए केड़ी दा नहीं है। चलिया जे कोई वेख्या भी है तो नजर नीवी कर, और ऐ सोच जे है एडा सोहना है तो कुर्बान जावा जिन्हें बनाया वो गड्ढा गुजोना होगा। पांडे जे पै ही गई नजर मियां तो थले कर लेते हैं, और ऐ सोच जे
जे कौन कह के एडा सोहना कर छड़िया तो कुर्बान जावा, फिर आपे की होएगी वो जात, ओदा महबूब किड्डा सोहना होएगा। मैं नहीं अखां वेख, मैं उन्होंने वेखना, तेन विखाणगे फिर तू कदी उन्होंने वास्ते मल तो सही अपने आप से गूं कि नहीं यार मैं रब नाराज नहीं करना, इस तो इलावा बचन का चारा कोई नहीं। तू कदी मल अपने ते, फिर जब जिब्राइल नूं भेजणगे जा साडे वास्ते गूं मलिया सू, जा एदे जिस्म ते हथ फेर, एदे च हुण कस्तूरी दी खुशबू आए। पांडे नाल न्यू लगाना ये केड़ी दानाई। वाह मियां साहब किथे बह के लिखिया सी जी, किड्डा सोहना। पांडे नाल न्यू लगाना ये केड़ी दानाई, न्यू लगाइए उस कारीगर नल जिन्ने ये चीज बनाई है। रह गए चिट्टा रंग वेख के ना खुदा, भुल गए, पागल कर छड़िया चिट्टे रंग ने इधर भी सन। पांडे नाल न्यू लगाना ये केड़ी दानाई, न्यू लगाइए उस कारीगर नल जिन्ने ये चीज बनाई है। फिर पुत्र सुन लो जो बच गया, फिर वो क्या कहा, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बे, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा, व नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। ये लिखा है जी इमामे, कितना सोना दो यार। बस अब उस दौर को याद कर करके रो ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अल्लाह माफ करे। वो लिखा जी इमाम अहमद बिन हंबल के पास ना दो बहनें आई, आगे करती हैं हजरत मसला पूछना है। फिर मैं पूछो, और करती है हजरत हम ना कपड़ा बनाती हैं और ज्यादातर हम काम रात को करती हैं, साथ अल्लाह का जिक्र करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, साथ हम कपड़ा बनाती हैं। फिर मैं ठीक हो गया। हजरत मसला ये है कि बाज दफा चिराग में ना वो तेल खत्म हो जाता है, दिया बुझ जाता है, तो फिर हम क्या करती हैं, फिर हम चांद की रोशनी में कपड़ा बनाती हैं। अब हजरत वो कपड़ा जो दिए की रोशनी में बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और जो बनता है ना चांद की रोशनी में, ज़ाहिर है चांद की रोशनी इतनी तेज तो नहीं होती, तो उस कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मसला ये पूछना था कि जब बाजार कपड़ा बेचने जाएं तो बता के बेचा करें, ये दिए की रोशनी में बना है, ये चांद की रोशनी में बना। इमाम साहब हैरान हो गए। अर्ज करती हैं फिर हजरत अभी मसला मुकम्मल नहीं हुआ, फरमाया आगे हजरत बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हमारा दिया बुझ जाता है, लेकिन वो रात या तो चांदनी रात नहीं होती या वैसे ही ऊपर बादल होता है, चांद की रोशनी तो होती नहीं। फिर हम क्या करती हैं कि हमारे जो हमसाए हैं ना, जो उनका दिया जल रहा होता है ना, तो हम जरा कपड़ा उस साइड पे करके बना लेती हैं। तो मसला ये पूछना था, क्योंकि वो दिया उन्होंने हमारे लिए तो नहीं जलाया, वो दिया तो उन्होंने अपने लिए जलाया है, लेकिन इस्तेमाल हम भी कर लेती हैं, तो आया ये चोरी में शुमार तो नहीं होगा? इमाम साहब रो पड़े, ओ कुर्बान जाऊँ, इतना तकवा। इमाम साहब रो, इतना तकवा। आपने पूछा कित्थों आई हो, किस घर से आई हो तुम, इतना तकवा कित्थों आई हो तुसी? वो बच्चियां आगे से कहती हैं हम अल्लाह के वली हजरत बिशर हाफी की बहनें हैं। आपने फरमाया जब तूने मसला पूछा था मैं तब भी समझ गया ये किसी आम घर से हो भी नहीं सकती हजरत। कित्थे गए यार सारे। और याद रखना पुत्र, स्पेशली नौजवान बैठे हो, पुत्र अल्लाह की मदद तब भी आएगी जब तकवा आएगा। जितनी देर तक हमने कम तोलना, धोखा देना, फ्रॉड करना ना छोड़ा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। उसके लिए हमें तकवे के रास्ते पे नहीं आएगी मदद। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है। कितना तकवा है जी। चार मसले फरमाया जड़ा चांद दी रोशनी जब दसीए जाके
کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا کوالٹی ٹھیک ہے, یہ چاند کی روشنی میں بنا کوالٹی ٹھیک. ہمسایوں کا دیا, ہمارے لیے نہیں جلا, اپنے لیے جلایا, یوز ہم نے بھی کر لیا, کہیں چوری تو نہیں شمار ہوگی. کیا ہو رہا ہے بازاروں میں حضرت, کیا کر رہے ہیں ہم دکاندار حضرت, کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک کی گل کہا تقوی پھر مدد حضرت. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے آراستہ کر دے حضرت.